जी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Amnasir with the roll number 542. Today my topic of discussion is optical properties of advanced materials. Subject inorganic materials chemistry. Course code is CAM 3115. We will discuss optical properties of advanced materials under the heading of Introduction of Optical Properties, Luminescence and its Types, How Light Interacts with Solids, Optical Properties and its Examples, and Quantum Dots. Optical properties are basically the study of how electromagnetic radiations interact with matter. यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ वाली रे एक मीडियम में एंटर हो रही है। अब ये रे या तो मीडियम में या तो मीडियम के साथ रिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब मीडियम से टकराने के बाद वापस आ सकती है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि मीडियम में से ट्रांसमिट हो सकती है, होने के बाद ना अपना पाथ चेंज कर लेगी या वो मीडियम में अब्जॉर्ब हो जाएगी। जिस तरह ये तीन केसेस बताए हुए ना, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी या अब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ वाइडर स्पेक्ट्रम इंटरेक्ट करती है किसी मीडियम के साथ, तो उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो रे उस मीडियम में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, या मीडियम से टकराने के बाद अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर जाएगी। जिस तरह ये पिक्चर में दिखाया गया, फर्स्ट वन जो है वो स्कैटरिंग है, वो मीडियम में ऑब्जॉर्ब हुई है, मतलब ट्रांसमिट हुई है। ट्रांसमिट होने के बाद उसने अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट करके डिफरेंट डायरेक्शन में वो स्कैटर हो गई है। और दूसरा ऑप्शन है वो मीडियम में ऑब्जॉर्ब हो गई है। Here you can see an incident ray, which is represented by I naught, interact with the solid material, and some part of it is reflected, which is represented by IR. Some part of it is absorbed, which मरीम का ना तो आवाज़ नहीं आ रही इसकी। ये स्क्रीन भी लेफ्ट हो गया सर। लेफ्ट हो गया है। जी सर, मैंने उसे मैसेज किया अभी।
मरीम आप स्टार्ट करो। जी सर। सर आमना कह रही है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी वॉइस का इशू हो रहा है। मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। आप करो, आप उसको करो तो नेट चेक करो। जी सर। सर जी मेरी आवाज हम ना आपकी स्क्रीन भी पता चली गई। सर मैं आई थिंक इंटरनेट का इशू है। मैं आगे प्रेजेंटेशन दे रही थी तो शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। तो अभी ये कायनात करने मरीम करने लगी तो उसके बाद आप चलो स्टार्ट करो आप मरीम। ओके सर। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आमना। मरियम। मरियम आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ओके सर। सर अब आ गई मेरी आवाज़? हाँ जी अब आई है। ओके सर। Assalamu alaikum. I am Kainat Mariam and my roll number is MCF 2000-286. First of all, I would like to thank to Dr. Aslam who had given me a chance to speak in this platform. The topic that I gonna to represent is the properties of advanced material with respect to optical properties. And the key concepts are quantum dots and its description, light source, applications of quantum dots and band structures of material, effect of size. So basically, what are quantum dots? Quantum dots are the nanoparticles and it ranges from 2 to 10 nanometer. Quantum dots, a nanoscale crystalline structure made from cadmium selenide. और ये जो नैनो स्केल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और नैनो सेकंड के बाद ही कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं जिनका एक स्पेसिफिक कलर होता है. And the properties, it is a semiconductor. It can change the properties while adding or removing an electron. Quantum dots are so small and the size of quantum dots can change the colors emitted. जैसे जैसे ही quantum dots का size change होगा वैसे ही उसकी emitted light का color change हो जाएगा. Applications of quantum dots are finding important medical application in the cancer treatment. So basically it can target it at a single organ much more precisely than conventional drugs such as liver. And the other application of quantum dots are it can play important role in the organic dyes in biological research. For example, they can be used like nanoscopic light bulbs to lighten up and color specific cell that need to be studied under a microscope. इसका ये मतलब है कि अगर हमने किसी भी सेल को स्टडी करना है अंडर माइक्रोस्कोप तो हम नैनो डॉट्स को नैनोस्कोपिक बल्ब्स के तौर पर यूज़ करेंगे सेल को लाइटन अप और कलर देने के लिए. फर्दर बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल. क्वांटम डॉट्स को हम बैंड स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डील करेंगे. It can based on electron bonding and anti-bonding orbitals in individual atoms. Orbitals from adjacent atoms overlap in molecule. In a solid, there are so many orbitals that they form a continuous band.
अब एज द शोन इन फिगर, यहाँ पे हम एनर्जी को डील कर रहे हैं विद द बिहाफ ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं जहाँ पे एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 3 ऑर्बिटल्स को डील किया गया है जहाँ पे एनर्जी गैप 2 ऑर्बिटल से कम है। उसके बाद 14 ऑर्बिटल्स है जिसका एनर्जी गैप 3 से कम है। उसके बाद 20 ऑर्बिटल्स को डील किया गया जिसका एनर्जी गैप 14 से कम है। उसके बाद 44 एनर्जी ऑर्बिटल्स को डील किया गया है जिसका एनर्जी गैप 20 से कम है। उसके बाद जो सॉलिड क्लोजली पैक्ड ऑर्बिटल है वहाँ पे एनर्जी गैप है ही नहीं और वहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस बैंड बना रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जितना ही ऑर्बिटल क्लोजली पैक्ड होंगे वो कॉन्टिन्यूस बैंड बनाएंगे और जितने ही ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर एनर्जी गैप उनमें जितना ज़्यादा होगा तो वो डिसक्रीट बैंड बनाते जाएंगे। इसके बाद हम डील कर रहे हैं विजिबल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ को। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ को डिस्कस किया गया यहाँ पे विद द बिहाफ ऑफ एनर्जी एज वेल एज द कलर। अब इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ 0.4 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के दरमियान हो तो वो वॉयलेट और ब्लू कलर को शो करेंगे। और अगर 0.5 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ है 0.5 माइक्रोमीटर से रेंज वेवलेंथ की 0.6 माइक्रोमीटर के दरमियान होगी तो वो ग्रीन एज वेल एज येलो एंड लिटिल बिट ऑरेंज कलर को शो करेंगे। उसके बाद अगर 0.6 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर रेंज है तो वो ऑरेंज कलर और रेड कलर को शो करेंगे। फर्दर यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑब्जॉर्प्शन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर्स इफ एच वी इज ग्रेटर देन ई गैप। इसको मैं ना सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ। अब इसमें यह है कि एक मीडियम है जिसके अंदर 2 स्टेट हैं। एक फिल्ड स्टेट है जैसा कि यहाँ पे बताया गया, एक फिल्ड स्टेट एज वेल एज अनफिल्ड स्टेट। एक मीडियम है जिसके अंदर 2 स्टेट्स हैं, फिल्ड स्टेट अनफिल्ड स्टेट। जब उसके ऊपर कोई इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करती है तो उस मीडियम के इलेक्ट्रॉन इन दोनों स्टेट्स के दरमियान एनर्जी गैप इक्वल रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिल्ड स्टेट से अनफिल्ड की तरफ शफल कर जाते हैं। फिर क्या होता है, इफ ई गैप इज लेस देन 1.7 ईवी तो वो ब्लैक और मेटेलिक कलर को शो करते हैं। अगर एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3.1 ईवी तो वो ट्रांसपेरेंट कलर शो करते हैं। इफ़ ई गैप इन बिटवीन हो तो वो डिफरेंट कलर्स को शो करते हैं जैसा कि हमने देखा पहले, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एज वेल एज रेड कलर। ओके, फर्दर अगर इसमें impurities और dopants cause energy levels in the band gap। अब इसमें यह बताया गया है कि इसमें 2 बैंड्स हैं, एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। इसको डील किया गया विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्साइटेशन एज वेल एज डी एक्साइटेशन। इसमें सिंगल फोटॉन्स को भी डील किया गया हुआ है और डबल फोटॉन्स के थ्रू भी इसको डील किया गया। अगर तो सिंगल फोटॉन है तो जो फोटॉन होगा वो ई वी से ई एफ पे पहले मूव करेगा, उसके बाद ई एफ टू ई सी मूव करेगा वो। और अगर डबल कॉम्बिनेशन जो फोटॉन है तो वो कॉन्टिन्यूस मतलब मूव करेगा, लाइक ई वी से वो ई एफ पे जाएगा और उसके बाद ई एफ से ई सी पे चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये बैंड्स बन रहे हैं। इसको मतलब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के लिहाज से यहाँ पे डील किया गया, सॉरी एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन के बिहाफ पे। एंड द इफेक्ट ऑफ साइज, जैसे जैसे ही साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल में इफेक्ट आता है। लाइक यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स को डील किया गया है, बल्क, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर एज वेल एज क्वांटम बॉक्स। जो क्वांटम बल्क है जो सॉरी 3D बल्क है उसका जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर है एंड इट इज नॉट द नैनोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इट्स अ बल्क मटेरियल। इफ वी ट्राई टू रिमूव वन पार्ट ऑफ द बल्क मटेरियल वी कैन मेक अ थिन स्लाइस एंड वी कैन गेट 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्वांटम वेल। मतलब वहाँ से अगर हम एक बल्क को हटा देंगे, एक मतलब उसके पार्ट को हटा देंगे तो उसका साइज स्मॉल हो जाएगा और वो क्वांटम वेल बन जाएगा। और जो क्वांटम वेल है उसका जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर 2 साइड से रहेगा, लाइक जो क्वांटम वेल है वो 2D हो जाएगा और एक साइड से वो नैनो स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब उसका जो डायमीटर है वो नैनो स्ट्रक्चर में मतलब डील किया जाएगा वो। आई एम सॉरी।
इसी तरह से क्वांटम वायर को भी डील करेंगे हम, लाइक उसमें से भी हम फर्दर सेपरेटिंग करेंगे तो उसका डायमीटर मज़ीद कम हो जाएगा। उसके बाद क्वांटम बॉक्स को फर्दर सेपरेट करेंगे तो वो टोटली मतलब नैनो स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले वो बल्क मटेरियल था, बल्क मटेरियल से ट्रांजिशन हुई है नैनो मटेरियल में। इसमें ये बताया गया। इसके अलावा इसको एनर्जी के बिहाफ से भी डील किया गया हुआ है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज एज द एनर्जी डेंसिटी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि एक ग्राफ बना हुआ है, एक साइड पे ई है और एक साइड पर रो ई है। अब इसको मैं बता रही हूँ कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस एज अ नंबर density, and this is called the number of electrons per unit change in the energy, or you can say that it is the energy difference between the E and E plus delta. What is E plus delta? E plus delta is the small change in the energy. So it is plotted here, that is a rho, and it is plotted on the x-axis, and the energy capital E is plotted on the y-axis. It is all about my presentation. Thank you. Hello, sir. Sir. Hello. आपकी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन शायद नहीं अभी रिस्पॉन्स दे रहे। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं कि नहीं? सर अभी अभी ना गेस्ट हैं, सर आएंगे गिरसा तो रुक रहे हैं, सर को आने दे। ठीक है। जी क्लास आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। हाँ जी, किधर है आमना? जी सर। स्टार्ट करो। जी सर। सॉरी सर। हाँ जी, स्टार्ट करो। क्या हो जा रहा है? चलो ऐसे ही कर दो, ऐसी आवाज आ रही है ना, ऐसे ही कर दो। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Amnasif with the roll number 542. Today my topic of discussion is
Optical properties of advanced materials, subject inorganic material chemistry, course code CAM 3115. We will discuss optical properties of advanced materials under the headings of introduction of optical properties, luminescence and its types, which are fluorescence and phosphorescence, how light interact with solids, examples of optical properties, and quantum dots. Optical properties are Optical properties are basically the study of how electromagnetic radiations interact with matter. जब कोई रे किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है ना तो उसमें तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिस तरह कि आप पिक्चर में देख सकते हैं या तो वो रे उस मीडियम के साथ इंटरेक्ट करके रिफ्लेक्ट मीडियम के साथ मीडियम के ऊपर अटैक करेगी ना तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो मीडियम में ट्रांसमिट होने के बाद अपने स्टेट पाथ से डेविएट कर जाएगी या मीडियम में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी Excuse me, sir. Sorry, sir. जब एक रे हैविंग अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज किसी मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती है ना तो उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या तो वो मीडियम के साथ इंटरेक्ट करने के बाद स्कैटर हो जाएगी मतलब मीडियम के अंदर ट्रांसमिट होकर अपने स्टेट पाथ से डेविएट कर जाएगी जिस तरह पिक्चर में फर्स्ट केस दिखाई दे रहा है या वो उस मीडियम में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी इस यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है इंसिडेंट रे जिसे आई नॉट से शो किया गया है वो किसी मीडियम के ऊपर अटैच होती है या मीडियम के साथ टकराती है टकराने के बाद कुछ पार्ट है ना उस इंसिडेंट रे का वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है जिसे आई नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है कुछ पार्ट जो है ना वो मीडियम से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है जिसे आई नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है और कुछ पार्ट जो है वो रेडिएशन का है ना वो मीडियम में से ट्रांसमिट हो जाता है जिसे आई नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है जब कोई सर्टेन का फोटॉन हमारे आई के साथ इंटरेक्ट करता है और उसकी सारी जो रेडिएशन है वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है कोई भी रेडिएशन का कोई भी पार्ट है ना वो ट्रांसमिट नहीं होता ना ही रिफ्लेक्ट होता है तो वो उस मटेरियल के कलर को इफेक्ट करेगा मतलब उसका कलर वो शो नहीं होगा जो एक्चुअल में उसका है अगर वो सारी लाइट है ना हमारी आई में ऑब्जॉर्ब हो जाती है ल्यूमिनेसेंस एक्चुअली ये है कि अगर कोई मटेरियल में कोई मीडियम में कोई रेडिएशन किसी मीडियम के ऊपर फॉल करती है ना फॉल करने के बाद उस मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अनफिल्ड स्टेट में होते हैं जिसकी लोअर एनर्जी होती है उन रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने के बाद इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने के बाद वो उस मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड स्टेट से अनफिल्ड स्टेट में आ जाते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है जब वो इलेक्ट्रॉन दोबारा फील्ड स्टेट में जाते हैं कुछ देर के बाद तो वो कुछ रेडिएशन को इमिट करते हैं अब वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो यहाँ तो बिल्कुल सेम होगी उसी तरह की जिस तरह की इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ यहाँ उसकी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन से कम या ज्यादा हो सकती है ल्यूमिनेसेंस की दो टाइप्स हैं फर्स्ट वन फ्लोरेसेंस एंड सेकंड वन फास्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस अगर मीडियम इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के लेवल पर चले जाते हैं और दोबारा लो एनर्जी लेवल तक आने लो एनर्जी लेवल में आने के लिए वो एक सेकंड या इससे कम एक सेकंड से कम टाइम ले रहे हैं ना दोबारा वो जो रेडिएशन को इमिट करके दोबारा लो एनर्जी में आते हैं अगर वो एक सेकंड से कम का टाइम ले रहे हैं तो उसे हम फ्लोरेसेंस बोलेंगे और अगर वो इलेक्ट्रॉन अनफिल्ड स्टेट से फिल्ड स्टेट तक आने के लिए एक सेकंड या इससे ज्यादा का टाइम ले रहे हैं तो उसे हम फास्फोरेसेंस कहते हैं इसी तरह दो टर्म्स हैं फ्लोरेसेंट एंड फास्फोरेसेंट वो भी सेम इसी तरह की है कि अगर ल्यूमिनेसेंस जो है ना वो एंड्स रैपिडली
अगर वो जल्दी हो एंड हो जाती है तो उसे हम उस मटेरियल को फिर हम कहते हैं फ्लोरेसेंट। और अगर कोई मटेरियल जो है वो ल्यूमिनेसेंस को कंटिन्यू करता है कुछ अर्सा के लिए तो उसे उस मटेरियल को हम फॉस्फोरेसेंट कहते हैं। जो मटेरियल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है उसे एंशियंट टाइम्स में डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज करते रहे हैं। जिस तरह यहाँ एक रोज विंडो दिखाई दे रही है ना, इसमें जो रेड और पर्पल कलर है ना विंडो में, ये गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब इस विंडो में गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स यूज किए गए हैं, उनकी फिर वो जो इमिटिंग या रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके, लाइट की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके इमिट कर रहे हैं और डिफरेंट तरह से लाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके कलर में चेंज आ रहा है, वो रेड और पर्पल कलर के शो हो रहे हैं। और दूसरा एक कप देख सकते हैं, अगर ये कप, इस कप के ऊपर लाइट हम फॉल करें और ये सारी जो रेडिएशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट कर दे तो ये ग्रीन कलर का अपीयर होगा। लेकिन अगर वो जो लाइट को हम अंदर की तरफ से अंदर अंदर हमने कप की लाइट रखी हुई है और वो लाइट जो कप है उसको ट्रांसमिट करके बाहर की तरफ आ गई है, तो वो जो उस कप का कलर जो है ना वो रेड शो होगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की फर्स्ट वन एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड अगर बल्क में हो तो वो येलो कलर का अपीयर होता है, जबकि गोल्ड के जो नैनोसाइज पार्टिकल्स हैं वो रेड कलर के अपीयर होते हैं। इसकी वजह ये है कि जब वो बल्क में होता है गोल्ड, तो उसके इलेक्ट्रॉन से ना वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो उस वजह से उसका कलर जो है ना वो बल्क में येलो शो हो रहा है, जबकि नैनो पार्टिकल्स में उसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उसका कलर जो है ना उसके कलर में डिफरेंस आ जाता है, बल्क की निस्बत वो रेड कलर का शो हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो यूवी लाइट को ब्लॉक करते हैं और वो विजिबल लाइट को स्कैटर करते हैं और वो व्हाइट कलर के अपीयर होते हैं। और जबकि अगर जिंक ऑक्साइड के हम नैनो पार्टिकल्स, नैनो साइज पार्टिकल्स को देखें तो यूवी लाइट को वो भी ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो लाइट को स्कैटर नहीं करते क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। और एक डिफरेंस ये भी है कि जो लार्ज वाले हैं वो वाइट अपीयर होते हैं, जबकि जो नैनो साइज पार्टिकल्स है जिंक ऑक्साइड के वो क्लियर कलर की अपीयरेंस शो करते हैं। और इस एप्लीकेशन को, जिंक ऑक्साइड की एप्लीकेशन को हम सन से भी यूज करते हैं। Next है quantum dots. Quantum dots are semiconducting nanocrystalline materials जिसका diameter 2 to 10 नैनोमीटर होता है। और जो quantum dots हैं वो distinctive colors प्रोड्यूस करते हैं, which is which is determined by the size of the particles. This is all about the presentation. Thank you.